Good morning, students. Yesterday we started a new lesson, Shushruta, a peep into the past. Peep into the past means to look in the past. Okay, झांकना past को या भूतकाल में झांकना. So we were trying to understand what it is. Shushruta was a bright student of veterinary medicines. Veterinary, I told you yesterday, the person who is related to the animals, sickness, disease and all. Any जो बीमार जानवर रहते उनकी दवा दारू या उनके देख रेख करने वाले को हम लोग वेटरनरी बोलते. ओके, एंड हिज टीचर वॉज सलील लोथरा. एंड वन डे व्हाट ही डिसाइडेड दैट to give a test to Shushruta, and he told him to list out the various instruments and all medicines which are needed for a surgery. And Shushruta listed all the things, but only 3 things were missing. That was 2 was to find out. Then Salil Lothra told him, you take a time of 1 week and try to find what are the 3 things you are missing in your list. Then later he came to know that a veterinarian should have an eagle eye. Second was a good veterinarian should have a lion's heart. And the third point it was a good veterinarian should have a mother's touch. If these 3 are there in a veterinarian, then we can say they are a good veterinary. Okay. Now we'll start with the second part of this. See, what is the second part? The tradition of veterinary therapy developed very early in the India and was survived to the present time. Means it started early in India and now it is going on in the present time also. Based on the Ayurveda, Indian veterinary medicine is known as to be specialized literature which provides information on ancient methods of preventing and treating diseases. Okay, this is the ancient method of preventing and treating the diseases of the animal. Some of these treatments still known outside India are still practiced today. See, what is this? Some of these treatments little known outside. Little known matlab all of them are not known to the other countries. बाहर के कंट्रीज़ को जानकारी नहीं है जो ट्रीटमेंट्स वगैरह हम लोग के इधर इंडियन में चलाए जाते, बट इट इज़ प्रैक्टिस स्टिल ओवर हियर. The oldest existing veterinarian text was from India is a treatise entitled Ashwa Ayurveda Siddhanta. Okay, Ashwa means related to horse. Okay, and Siddhanta treatise are some of the सीरियस राइटिंग. जैसे ट्रीटिस मतलब राइटिंग होता है, एक पर्टिकुलर इसमें सब्जेक्ट के बारे में लिखा जाता है, उसके बारे में दैट इज कॉल्ड एज ट्रीटी. ओके, द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग वेटरनरियन टेक्स्ट मतलब बुक फ्रॉम इंडिया इज द ट्रीटिस एंटाइटल अश्व आयुर्वेदा सिद्धांत कंप्लीट आयुर्वेदिक सिस्टम फॉर द हॉर्सेस. इट इज ए कंप्लीट आयुर्वेदिक सिस्टम फॉर द हॉर्सेस attributed to Salil Lothra around 2350 BCE. The founder of veterinary medicine. Okay, Salil Lothra is the founder of this. Subsequently, various treatises on horses and diseases of horses were composed. इस तरह काफ़ी सारे treatises and diseases of the horses were composed, यानी बनाए गए थे. Nakula was the 5 Pandavas was a horse specialist himself. Nakula, I hope you know Nakula. If you are फैमिलियर विद द महाभारत, अगर आप लोगों को महाभारत वो पता रहेगा तो आपको पता रहेगा कि नकुल एक 5 पांडव में से एक भाई थे. पहला युधिष्ठिर, सेकंड इज द भीम, थर्ड इज अर्जुन, सहदेव एंड नकुल. सो नकुल वॉज वन ऑफ द स्पेशलिस्ट इन द हॉर्स डिसीजेस एंड ऑल हिमसेल्फ. Among the best known works of the animal literature is अश्व चिकित्सा. उसमें से सबसे जाना पहचाना सा कौन सा है एनिमल लिटरेचर? अश्व चिकित्सा. We were studying yesterday all these things. Shushruta, a disciple of Salil Lothra, wrote an animal surgery. Shushruta, a disciple of Salil Lothra. Disciple मतलब student. Shushruta, a disciple of Salil Lothra मतलब सलील लोथरा का एक स्टूडेंट Shushruta. He wrote an
on animal surgery. This made people aware of the surgical method. दिस यानी इससे क्या हुआ, लोगों को जानने लगे सर्जिकल मेथड के बारे में, और फिर लोग जानने लगे कि सर्जिकल मेथड जैसा भी चीज़ होती है जहाँ पे ड्रेसिंग ऑफ वुंड्स, बैंडेजिंग ऑफ फ्रैक्चर एक्सेट्रा इज आर इंक्लूडेड। इन सब में ड्रेसिंग ऑफ वुंड्स मतलब घाव जब लगती है तो उसको चोट को दवाई वगैरह लगा के उसको बैंडेज वगैरह किया जाता है। ड्रेसिंग करना, बैंडेजिंग एंड फ्रैक्चरिंग, बैंडेजिंग ऑफ द फ्रैक्चर्स, यानी जहाँ पे हड्डियाँ टूट जाती है वहाँ पे बैंडेज करके उस बोन को स्ट्रेट किया जाता है। लेटर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य अराउंड 300 BC, veterinarians started accompanying armies to treat horses, elephants as well as cattle. यानी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम को वेटेरिनरी स्टार्टेड accompanying आर्मीज, आर्मीज में जब वहाँ पे घोड़ों का इस्तेमाल वगैरह होता है, एलिफेंट का होता है, तो उनकी ये करने लगे। ओके, The great Emperor Ashoka erected the first non-veterinary hospital. Now the great Emperor Ashoka, Emperor Ashoka है, उन्होंने फर्स्ट वेटरनरी हॉस्पिटल बनाया of the world. He arranged cultivation of herbal medicines for men and animals in his empire and adjoining kingdoms. What he did? He cultivated the herbal medicines, यानी उन्होंने खेती, दवाई की वगैरह खेती करने में, जैसे हर्बल मेडिसिन होते हैं, जैसे हम तुलसी बोल सकते हैं, नीम बोल सकते हैं, और बहुत सारे अदर चीज़ें हर्बल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, घरगुती मतलब घर में होममेड चीज़ें बनाते हैं जिससे, तो उसकी उन्होंने कल्टीवेशन करने लगे, यानी खेत में उसको ये करने लगे, उगाने लगे। ये अरेंज कल्टीवेशन फॉर द हर्बल मेडिसिन्स फॉर मैन एंड एनिमल्स, यानी इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। इन हिज एम्पायर एंड एडजॉइनिंग किंगडम्स, गिविंग द एनिमल्स जनरल टॉनिक्स एंड स्टिमुलेंट्स was practiced in order to ensure good mental and physical health. Okay, stimulant का मतलब है substance that gives a more energy. Okay, एक सब्सटेंस होता है जिससे वो डाल देने से उसमें एनर्जी आती है। तो गिविंग एनिमल्स जनरल टॉनिक्स भी, इवन अपने को इंसानों को भी टॉनिक्स वगैरह दिया जाता है। अगर कोई इंसान कमज़ोर है तो डॉक्टर के पास जाते तो वो लोग अपने को टॉनिक्स वगैरह रेफर करते हैं। तो वैसे टॉनिक्स और स्टिमुलेंट्स जिससे उनको स्ट्रेंथ बढ़ता है वॉज प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू एंश्योर गुड हेल्थ, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, यानी गुड और मेंटल हेल्थ के लिए। प्रिवेंशन ऑफ द अकरेंस ऑफ द डिसीजेस वॉज ऑल्सो गिवन इम्पोर्टेंस। मीन्स वॉट? टू प्रिवेंट द डिसीज अकर, बार बार कोई भी बीमारी आना नहीं चाहिए, इसकी प्रिवेंशन भी लिए जा रहे थे। क्लीनिनेस ऑफ एनिमल्स, मेंटेनेंस ऑफ स्टॉल्स एंड स्टेबल्स, क्वालिटी ऑफ फूड, डिसएडवांटेजेस ऑफ ओवर फीडिंग वेर लुक्ड आफ्टर। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड हो गए? देखो, क्लीनिनेस ऑफ द एनिमल, एज इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू बी क्लीन, इवन इट इज़ सेम टू द एनिमल्स ऑल्सो, they should be also kept clean. So cleanliness of the animals, maintenance of stalls and stables where the animals stay, okay, that should be also take care, looked after and cleaned and everything. It should be quality of the food which is provided to the animals, that is also looked after. Disadvantages of overfeeding were looked after. Okay, this is disadvantages of overfeeding, मतलब कभी कभी कुछ ज़्यादा खिलाया जाता है जानवरों को वगैरह, तो इसमें भी डिसएडवांटेज है। आप लोगों को भी महसूस होता है, जिस दिन हद से ज़्यादा आप लोग खाते हो तो आपको दूसरे दिन तकलीफ होती है। तो देर आर डिसएडवांटेजेस ऑफ ओवर फीडिंग ऑल्सो। सो दिस वे ऑल टेकन केयर। व्हाट इज दैट? क्लीनिनेस ऑफ एनिमल्स, मेंटेनेंस ऑफ स्टॉल्स एंड स्टेबल्स वेयर द एनिमल्स आर केप्ट, and the quality of the food which is given to that animals, and also the disadvantages of overfeeding the animals, that were taken care of that. Utilizations of animal byproducts are also done wisely by our ancestors. Conversion of the milk into butter, ghee, curd, soya, etc. was a common practice and still is. Chicken are utilized for its meat,
while sheep is utilized for wool. यानी byproducts mean the things we get from the animals. Milk say we get the milk from the cow, we prepare ghee, butter and all everything, curd, koya. And same from the chicken we is used for eating, it's the meat, and the sheep is utilized for the wool. Although India has always had immense knowledge in the field of veterinary science, it is not chosen as a career by many due to the lack of awareness. What is this? Although India has always made immense knowledge in the field of veterinary science, मतलब हमें जानवरों के बारे में, इनकी साइंस के बारे में काफ़ी जानकारी है, पर इसके बावजूद भी इट इज़ नॉट चूजन एज अ करियर. उससे हम लोग फिर भी इसके बावजूद भी हम लोग उसको एक जानवर का डॉक्टर का ये जो रहता है उसको हम लोग करियर की तरह नहीं देखते. ओके, बाय ड्यू टू किसकी वजह से? ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब उसके बारे में जागरूकता नहीं है लोगों में, लोग उसको इतने सीरियसली नहीं लेते. जैसे बाकी डॉक्टर्स लोग जो इंसानों को ट्रीट करते, दवा वगैरह देते, ऑपरेशन करते, सर्जन्स, जितनी वो डॉक्टर्स को मान्यता देते मानते हैं उतनी हम लोग जानवर के डॉक्टर को नहीं मानते. कोई किसी को लगता नहीं है कि हाँ वो जानवर का डॉक्टर बनना चाहिए हमें, ऐसा ज़्यादातर हम लोग इंसानों को डॉक्टर के बारे में ही सोचते हैं. तो ऑल्दो इंडिया हैज़ ऑलवेज हैड इमेंस नॉलेज इन द फील्ड ऑफ द वेटरनरी साइंसेज, इट इज़ नॉट चूजन एज अ करियर. उसको हम लोग करियर के तौर पर नहीं देखते हैं, बाय मैनी ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस. Being an agriculture-based country, today India needs more veterinarians who empathize with animal and give their 100% to the profession. मैंने बीइंग एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, मतलब अपना देश क्या है? एग्रीकल्चर बेस्ड है, हमारे यहाँ अनाज ज़्यादा उगता है. तो इस ऐसे होने पर हमें इंडिया में सबसे ज़्यादा वेटरनेरियन को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि वो जानवरों से रिलेट करते हैं. खेती बाड़ी पहले से हम लोग, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि हम लोग जानवर के इस्तेमाल के बुल के वगैरह यूज़ करते, हॉक्स का यूज़ करते खेती करने के लिए होगा. तो बीइंग अ एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, इंडिया नीड्स मोर वेटरनेरियंस हू एम्पैथाइज विथ एनिमल्स. मतलब वो जो ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो जानवरों को जानना चाहते हैं या उससे ये रखते हैं, जैसे पीटी ऑन देम, उनके बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों की हमें वेटरनेरियन की ज़रूरत है. और अपनी पूरा 100% उसको डेडिकेट करें. उन्हें वो जानवर है तो उस जानवर के प्रति एक लगाव, प्यार, और वो जो अगर इफ़ यू आर वेटरनेरियन यू शुड गिव योर 100% टू दैट प्रोफेशन. यानी अपने को उसके बारे में बहुत सोचना है. ऐसा नहीं कि वो जानवर है तो हम वी नेग्लेक्ट दैट. As you care for your human being's life, it is quite necessary to care for the animal's life also. तो हम लोगों को 100% इस प्रोफेशन में एज ए वेटरनेरियन भी हमें देना है. जानवर के बारे में सोचना है, उसकी भलाई के बारे में सोचना है. वी हैव टू फील पिटी फॉर दैट एनिमल जो बोल नहीं सकते, उसके बारे में हमें सोचना है. एंड यू शुड टेक दिस प्रोफेशन. ऐसे लोगों ये कहते हैं कि वी शुड टेक दिस प्रोफेशन एंड शुड केयर फॉर द एनिमल्स ऑल्सो. Okay, this is what the lesson it was. I hope you understood the lesson. सुश्रुता कौन है? एंड वो सलील ओथरा. सलील ओथरा का डिसिपल यानी वॉज सुश्रुता. डिसिपल मीन्स द फॉलोवर यू कैन से, या स्टूडेंट. तो नाउ द लेसन इज कंप्लीट. वी विल प्रोसीड विद द assignments and all whatever it is given to you. Thank you.